بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے سامنے تال سجائے سموسے بیچنے میں مصروف تھی، مگر ابھی تک اس کا ایک بھی سموسہ نہ بکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے زوردار آواز لگائی۔ آج وہ اپنے سموسے کچھ سستے داموں میں بیچ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ساری رات عبادت کرنے کا ارادہ تھا۔ آج 30ویں رمضان کی شب تھی اور وہ اس شب میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتی تھی۔ خشک حلق کے ساتھ اس نے پورا زور لگا کر کچھ بلند آواز میں صدا لگائی، سموسے لے لو، مگر ابھی بھی اس کی طرف کوئی گاہک نہ آیا۔ مارکیٹ کے تمام گاہک شیشے والی اونچی دکان میں سموسے خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ زمین پر رکھے اس کے تال میں چند سموسوں کی جانب کسی کی توجہ نہ تھی، حالانکہ اس نے سموسے جالی کے کپڑے سے ڈانپ رکھے تھے تاکہ مکھیوں اور گندگی سے بچے رہیں۔ ہاتھ دھونے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کے بعد اس نے سموسے خود سے تیار کیے تھے، بلکہ وہ پورے رمضان سے ہی یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ کبھی تو اس کے سموسے بک جایا کرتے تھے اور کبھی وہ ویسے کے ویسے ہی تمام سموسے اٹھا کر گھر لے جاتی اور اس کے بچے صبر شکر کر کے کھا لیتے۔ سموسے نہ بکنے کی صورت میں اس کے بچوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو ہوتا تھا، مگر پیسوں کی تنگی اس کو رلا دی تھی۔ وہ مغرب کی اذان تک بیٹھی رہی۔ اب تو سارا بازار سنسان ہو چکا تھا، تمام لوگ افطاری کی اشیاء خرید کر اپنے اپنے گھر کو جا چکے تھے، مگر اس امید میں کہ اس کی شاید ابھی بھی کوئی گاہک آ جائے اور اس کی چیزیں خرید کر گھر لے جائے اور اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں۔ ابھی تک اس کے تقریباً آدھے سموسے بکے تھے، جبکہ باقی آدھے جوں کے توں ہی پڑے تھے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو وہ تال اپنے سر پر رکھ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنے ہی سموسوں سے روزہ افطار کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے وہ گھر کی طرف بڑھ گئی۔ زینب نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کی ساری زندگی دکھ اور محرومی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ اس کی ماں نے جیسے تیسے کر کے اسے اور اس سے چھوٹے دو بھائیوں کو پال پوس کر جوان کیا۔ اس کا باپ صرف ایک مکان چھوڑ کر گیا تھا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ روپے پیسے کی بے حد تنگی تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، مگر اس کو اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا شوق تھا، لہٰذا غربت کے باوجود اس نے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھنے کو بٹھا دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ محرومی اور غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود بچے پڑھ لکھ گئے۔ زینب نے FA کا امتحان پاس کیا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی، جبکہ اس کے دو چھوٹے بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زینب بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ بھائی پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ گئے تو گھر کے حالات کچھ بدل گئے۔ زینب کی ماں کو بھی کچھ سکون حاصل ہوا، مگر زینب کی قسمت میں شاید سکون نہیں تھا۔ وہ بری قسمت لکھوا کر پیدا ہوئی تھی۔ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کا شوہر ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے تینوں چھوٹے بچوں کو لے کر ماں کے در پر آ بیٹھی۔ ماں اپنے بیٹوں کی کمائی خوشی خوشی بیٹی اور اس کے بچوں پر خرچ کرتی۔ ماں کے ہوتے ہوئے زینب کو کبھی کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس کی ماں نہ صرف بچوں کی لاڈ اٹھاتی بلکہ ان کی فرمائشیں اور خواہشیں بھی پوری کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی۔ ماں کے ہوتے ہوئے اس کے بھائیوں کے رویے بھی اس کے ساتھ اچھے تھے۔ اس کے بھائی اس پر اور اس کے بچوں پر جان چڑھکتے۔ ماں نے بڑے ارمانوں سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی رچائی اور زینب نے ماں کا پورا ساتھ دیا۔ بازاروں کے چکر لگانے سے لے کر گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی۔ دونوں بھابھیوں کو گھر میں آنے سے گھر میں خوب رونق لگ گئی۔ خاندان مکمل ہو گیا، ہر طرف خوشی ہی خوشیاں تھیں۔ وقت نے پلٹا کھایا۔ زینب کی ماں نہ رہی، معمولی بخار نے اس کی جان لے لی۔ ماں کی چھاؤں سر سے ہٹی تو زینب کو دھوپ کی تپش کا احساس ہوا۔ بھائیوں کے اپنے بچے ہو گئے تو اس کے بچوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ وہ کام کرنے والی ملازمہ بن گئی۔ چلو بیوہ نند کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ بچے بڑے ہونے لگے تو جگہ کی تنگی پڑی۔ بھائیوں نے بھابھیوں کی زبان بولنا شروع کر دی۔ تم کرائے کے گھر میں چلی جاؤ، باجی ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، یہاں گھر چھوٹا ہے۔ اس نے بھائیوں کی جانب غمگین نظر سے دیکھا۔ گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گی؟ وہ کہہ نہ پائی، بس سوچ کر رہ گئی۔ کرائے کی فکر مت کرنا، ہم دونوں مل کر دیں گے۔ بھائی نے اس کی پریشانی بانپ لی۔ اس کے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا نکلی۔
सदा शादोबाद रहो। वो अपने बच्चों को लेकर कराए के घर में आ बसी। ये घर भाइयों ने ही ढूंढ कर दिया था। घर भाइयों के घर से कुछ दूर था। उसे घबराहट हुई, अकेली कभी रही नहीं थी। हमेशा माँ का साथ था और माँ के बाद भाइयों के आश्रय थी। भाइयों ने इस मामले में भी तसल्ली दे दी। कोई मसला नहीं, इसका भाई बोला था, मैं तो वैसे भी गाड़ी लेने वाला हूँ, कुछ दिनों में आने जाने का तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। वो एक बार फिर मुतमईन हो गई। बच्चे भी अलग घर में आकर खुश थे, क्योंकि मामू के घर में तो मामियां इधर से उधर फिरने तक ना देती। एक कमरे तक महदूद रहना पड़ता और अगर कभी किसी चीज को हाथ लगा दो तो गुस्से में झड़क दिया करती। यहाँ वो अपनी मर्जी से पूरे सहन में भागे फिर सकते थे। घर तो छोटा सा ही था, एक कमरा और एक सहन था, लेकिन इन चारों के लिए काफी था। रात को एक ही कमरे में सब लेट कर सो जाते और सुबह को सहन में भागे फिरते। ज़ैनब भी बच्चों को खुश देखकर खुश हो गई। शायद यही फैसला सही था, भले वक्त में अलग होना ही बेहतर था। वो भी मुतमईन थी। भाई तो पहले घर का किराया और खर्चा बाकायदगी से देते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके खर्चे बढ़ने लगे। बच्चों के स्कूलों की फीस से लेकर गाड़ियों का खर्चा। अब ज़ैनब और उसके बच्चों के लिए उनके पास पैसे ना बचते। बढ़ती महंगाई के सबब अखराजात बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में बेवा बहन और उसके बच्चों का बोझ क्यों कर उठा पाते। आखिर उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना था। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी फीस और बढ़ती हुई फरमाइश पूरा करने के लिए मजीद पैसे दरकार थे, जो पैसे बहन और उसके बच्चों में लग जाया करते थे। अगर वो पैसे बच जाएं तो अपने बच्चों पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता था। बजी तुम भी कुछ हाथ बटा दिया करो, सारा दिन घर में फारिग होती ही हो, कोई काम शुरू करो। आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं, देखना अल्लाह कैसी बरकत डालेगा। वो भाई का मुंह तक रही थी। वाकई ये तो उसने कभी सोचा ना था। खुद भी काम कर सकती थी। अपने बच्चों की कुछ फरमाइशें पूरी करने के लिए उसे भी मेहनत करनी चाहिए। भाई तो महदूद खर्चा दिया करते, जिससे बस खाना पीना ही हुआ करता, जबकि बच्चों की बहुत सी फरमाइशें वो सारा दिन भर रद्द करती रहती। काम करने के लिए भी पैसे दरकार थे, जो भाइयों ने झट से उसके हाथ पर रख दिए। अभी थोड़े से शुरू करो, जब मुनाफा होगा तो इसी मुनाफा के रकम काम में लगाती जाना। भाइयों ने मशवरा दिया तो उसकी अकल में बात समा गई। वो खाना पकाने में माहिर थी, लिहाजा उसने छोटी मोटी चीजें बनाकर बेचनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने चाट बेचने से काम शुरू किया। अपनी ही गली में दरवाजे के आगे चाट रख कर बैठ गई। उसके बच्चे भी चाट बेचने में इसकी मदद करने लगे। एक भाई का बैरूनी मुल्क जाने का काम बन गया तो वो बाहर चला गया। वो कब से बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ था, जबकि दूसरे भाई की अपने बढ़ते हुए बच्चों के अखराजात ज्यादा थे, इसलिए उसने खर्चा देने से साफ इनकार कर दिया। बाजी अब तो इतना अच्छा कमाती हो, अपने बच्चों को तो खर्चा उठा सकती हो। वैसे भी अमजद बाहर गया है, उसकी आमदनी ज्यादा है, मेरी तनख्वाह तो वैसे भी कम है। यहाँ के खर्चे इतने हैं कि अपने खर्चे पूरे नहीं होते। वाकई भाई की सही कह रहा था। बढ़ती हुई महंगाई में तो अपना पूरा करना मुश्किल है। ऐसे में बेवा बहन और उसके 3 बच्चों का कोई कैसे पूरा कर सकेगा। उसको भाई से हमदर्दी हुई और वो अपने बच्चों के अखराजात पूरे करने की फिक्र में लग गई। वो अपने तीनों बच्चों के लिए भाई के शानदार से घर में दाखिल हुई। उसके भाई ने नया घर बनाया था। उसे मालूम था कि यह घर कहाँ पर है। वो पहले कभी उस घर में दाखिल ना हुई थी। आज घर के सामने से गुजरी तो घर में रौनक दिखाई दी। वो भी परशौक नजरों से भाई के घर चली आई। उसने बाहर से गुजरते हुए घर पहले भी देख रखा था, मगर अंदर से घर देखने का उसे बहुत शौक था। अंदर दाखिल होकर उसे एहसास हुआ कि भाई ने कोई अफ्तार पार्टी रखी हुई थी। उसे और उसके बच्चों को भाई का शायद मधु करना भूल गया। अपनी भाभी को नेक से तैयार हुए इधर उधर फिरते देखकर वो फौरन भाभी की तरफ बढ़ी। बच्ची भी लॉन में लगी रौनक देखकर खुशी से माँ का पल्लू पकड़े आगे बढ़े। उसे देखकर भाभी का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके बच्चों ने मोमानी को जोरदार सलाम किया, मगर मोमानी जवाब देने से ज्यादा हैरत में मुब्तला थी। तुम्हें किसने, मंजूर ने बुलाया? उसने ज़ैनब से सवाल किया तो ज़ैनब ने चौंक कर नफी में सर हिला दिया। अपनी भाभी की लहजे की कड़वाहट वो आसानी से पहचान सकती थी। दरअसल मंजूर के कारोबारी दोस्तों की दावत है, घर के लोगों को नहीं बुलाया। भाभी ने उसे बताया कि उसने अपना माथा पीट लिया। वाकई उसे ऐसे बिन बुलाए नहीं आना चाहिए था।
वो किन अक्कियों से अपनी भाभी के रिश्तेदार और माँ बहनों को दूर बैठे हुए देख चुकी थी, मगर नजरअंदाज करती बच्चों को समझाते हुए वापस के लिए निकल खड़ी हुई। लॉन में लगी मेजों पर वेटर गर्मा गर्म खाना सजाने में मसरूफ थे। रंग बिरंगे खानों की दिलफरेब खुशबुएं पूरे लॉन में बिखर गईं। वो बच्चों को समेटती गेट की जानिब बढ़ी। बच्चों ने मेज पर सजे खाने को ललचाई नजरों से देखकर उसका पल्लू हिलाया। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने कभी नहीं खाया था। इतने बड़े लॉन में तकरीबन 50 के करीब मेज़ें लगी थी। क्या किसी को कोने में कोई एक छोटी सी मेज़ भी ऐसी नहीं थी जहां बैठकर वो अपने बच्चों के भी रोज़ा अफ्तारी कर सकते? चमकती हुई भूख के साथ खाने से नज़र चुराती, अपने बच्चों को समेटती आंखों में आंसू लिए वो गेट से बाहर निकल आई। ज़ैनब और भूखे बच्चों को घर से निकलता देखकर हाजरा मुस्कुराई थी। हाजरा ज़ैनब की भाभी थी। उसने ज़ैनब की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने की ठान ली, क्योंकि वो जब से ब्याह कर उस घर में आई थी अपनी सास और शोहर से ज़ैनब के नाम की माला अलापते सुनी आई थी। ज़ैनब का जिक्र उसके लिए झुंझुलाहट का बायस बन गया। वो ज़ैनब का नाम तक उस घर से मिटाना चाहती। उसने ठान ली थी कि वो अपने नंद को जल्द यहाँ से चलता करेगी, मगर सास की जिंदगी में तो ये मुमकिन ना हुआ। सास के मरने के बाद उसका काम आसान हो गया। अल्लाह जाने ज़ैनब से उसको क्या बैर था। हसद व जलन का शिकार हाजरा ने भाई के घर ज़ैनब का एक एक दिन गुजारना मुश्किल बना दिया। वो ज़ैनब के बच्चों को हर बात पर रोकती टोकती और हाथ उठाने से भी ना गुरेज करती, मगर ज़ैनब उसका गुस्सा और नफरत समझने के बावजूद नज़रअंदाज कर देती। जाहिर है अपने यतीम बच्चों को लेकर जाने के लिए उसके पास कोई और ठिकाना भी नहीं था, लिहाजा उसने कभी भी अपने भाई से भी शिकायत ना की। उसकी बीवी बच्चों के साथ नारवा सलूक करती, बल्कि सारा दिन घर के काम में और भाई के बच्चों की खिदमत में जूती रहती। हाजरा के शोहर ने अफ्तार पार्टी में मेहमानों की फहरिस्त बनाते हुए अपनी बहन को याद किया कि ज़ैनब को भी बुला लेते हैं, उसके बच्चे भी अफ्तार पार्टी से लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। हाजरा ने इतना बड़ा मुंह बनाया कि मंजूर उसे देखकर आ गया। वो यतीम पट्टे पुराने कपड़े पहनकर आएंगे तो मेहमानों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारे रिश्तेदार इतने गरीब हैं। मंजूर की अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी थी। उसका हल्का अहबाब पढ़े लिखे अमीर लोगों से भरा हुआ था। अब तो उसने पैसे जमा करके अपना कारोबार भी जमा लिया था, जिससे उसको अच्छा खासा मुनाफा होता। उसका हल्का अहबाब मजीद बढ़ गया। वो अपने अमीर दोस्तों से अपनी गरीब बहन को क्योंकि मुतारफ करवा सकता था। मंजूर खुद भी खुश था। उसने बड़ी जल्दी कामयाबी समेटी थी। अब उस कामयाबी को मनाने का वक्त था। इसी सूरत हाल में अपनी बीवी, जो कि हमेशा उसके शाना बशाना खड़ी रही, उसको नाराज करके घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था, लिहाजा उसकी बात सुनकर चुप हुआ। बाजी को भी मैं घर में अफ्तारी दे आऊंगा, उसने दिल में सोचा था। अफ्तारी पार्टी बड़ी शानदार रही थी। सभी लोग खाने की और ज़ेब व आसाइश की तारीफ कर रहे थे। हाजरा ने हर चीज़ बड़े अच्छे और सलीके से पेश की। सभी मेहमान खुश होकर घर से लौटे। मेहमानों में से कोई भी ऐसा ना था जो इनके नए घर बनने की खुशी में तोहफे तवाइफ ना लाया। मेहमानों से मिलते मिलाते उनकी रुखसत करते मंजूर अपनी बहन की घर अफ्तारी भिजवाने के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। दोनों मियाँ बीवी थके हारे बैठे पार्टी को ही मौजूए गुफ्तगू बनाए हुए खुश हो रहे थे। बाकी का सारा काम नौकरों पर छोड़कर खुद पाँव पे सार कर फैल गए। वेटर्स ने बच्चा कुचा खाना आपस में तकसीम किया और काम समेट कर चलते बने। अपनी कामयाब अफ्तार पार्टी का जश्न मनाता हुआ मंजूर बेवा बहन और उसकी यतीम भूखे बच्चों को बिल्कुल ही भूल गया। वो दोनों मियाँ बीवी इस बात पर खुश थे कि कितने ही रोज़ादारों का रोज़ा खुलवा कर उन्होंने जो अजर व सवाब समेटा वो उनकी आखिरत की तैयारी के लिए काफ़ी था। नादान ये नहीं जानते थे कि यतीम बच्चे उनके घर से खानों की खुशबू सूंघते खाली पेट वापस लौट गए। ज़ैनब के बड़े दो बच्चे तो समझदार हो गए। वो जानते थे कि उनकी माँ उनके खर्चे उठाने की सकत नहीं रखती, लिहाजा उन्होंने फरमाइश और ख्वाहिश करना छोड़ दी। मगर छोटी बेटी अभी ना समझती। वो मोहल्ले के बच्चों को रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कपड़े पहनती देखती तो अम्मा का सर काने पहुंच जाती। अम्मा इस ईद पर तो नया जोड़ा दिलवा दे।
तूने पिछली ईद पर भी कुछ ना दिलवाया था। देख मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। इसने अपनी तोतली जबान में अपने फटे कपड़े माँ को दिखाए तो ज़ैनब का दिल कट कर रह गया। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, मगर वो इतने ही पैसे कमा पाती जिसमें 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी होती। कपड़े खरीदने के पैसे उसके पास कहाँ से आते? ज़ैनब की हमसाई ने उसे मशवरा दिया कि उसके बाप का घर बेच दिया गया है तो अपने भाई से अपना हिस्सा तलब करता कि कम से कम उसके सर पर अपने घर की छत हो जाए। मकान का किराया देना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, लिहाजा वो एक बार फिर भाई के दर पर पहुंच गई। उसने अपने भाई के मकान में अपने हिस्से का मुतालबा किया तो हाजरा हैरत से मुंह फाड़े उसे देखने लगी। खुदा की पनाह, बेटियों को घरों में हिस्से नहीं होते। तुम्हारे भाइयों ने तो सारी जिंदगी तुम पर इतना लुटाया, तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा जवान किया और तुम घर से हिस्सा मांगने चली आई। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाइयों से हिस्सा मांगते हुए? ज़ैनब शर्मसार हो गई। वाकई उसे हिस्सा नहीं मांगना चाहिए था। वो हमसाई के कहने पर चली आई थी। उसके भाइयों ने इसके लिए क्या नहीं किया था? उसके बच्चों को पाला पोसा था, हर तरह से खर्चा किया। वो शर्मिंदगी से मुंह लपेट कर वापस जाने को तैयार हुई। भाई को घर में दाखिल होते रुक गई। 2 पल भाई के साथ गुजारने को दोबारा बैठ गई। उसे भाई में भी अब्बा की शक्ल दिखाई देती थी। वो भाई का चेहरा तकने लगी। अब ऐसे मस्कीनों की तरह क्या देख रही हो? मंजूर का जवाब भी वही होगा जो मेरा है। हाजरा उसे दोबारा बैठे देखकर टटक गई। कहीं ये मंजूर को राजी ही ना कर ले। भाई के सामने मनूस शक्ल बनाकर बैठ गई है। हाजरा उसकी चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ थी। चालाकियों से ही उसने हमेशा अपने भाइयों से पैसे बटोरे थे और अब फिर हाजरा के बच्चों का हक खाने चली आई थी। पैसों की लालच ने हाजरा को अंधा कर दिया था। उसे ज़ैनब के दुख भी चालाकी दिखाई देते। मंजूर सूरत हाल को ना समझा तो बेगम की जानिब सवालिया नज़र से देखने लगा। मकान में हिस्सा चाहिए आपकी बहन को? हाजरा ने बड़े तंज से ज़ैनब का मुतालबा दोहराया। मंजूर ने भी हैरान नज़रों से ज़ैनब की जानिब देखा। नहीं भाई, वो हकला गई। आपको तो मालूम ही है, पढ़ते बच्चों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मैंने सोचा अपनी छत हो जाएगी तो मकान का किराया बच्चों की ज़रूरत पूरी करने में लगा दूंगी। खैर से 3 बच्चों के खर्चे भी मेरी इस्तेताअत से ज़्यादा हैं। इसके ज़हन में अपने बच्चों की मासूम चेहरे उभरे तो मुस्कुरा दी थी। बच्ची ही तो इसकी जीने की आस थे, वरना वो तो खुद को कब का ख़त्म कर ली थी। मगर वो अपने बच्चों की खातिर जी रही थी। उनके जीने का सम्मान करने की कोशिश में सारा दिन लगी रहती। 3 बच्चों के खर्चे अगर तुमसे पूरे नहीं होते तो एक आधे को मार डालो। कम बच्चे होंगे तो खर्चे भी खुद ही पूरे हो जाएंगे। हाजरा का जहर में डूबा लहजा सुनकर वो कांप गई थी। उसके हलक से कांपती हुई आवाज में सदा बुलंद हुई, ऐसा मत बोलिए। लोग आइसक्रीम में जहर मिलाकर बच्चों को खिला देते हैं और खुद भी खाकर सो जाते हैं, दूसरे की जिंदगियों को अजाब नहीं बनाते। हाजरा ने उसे एक और तीर मारा। उसका कलेजा छलनी छलनी हो गया। उसने जख्मी नजरों से भाई की जानिब देखा, जो नजरें पहरे पांव पर पांव जमाए गुस्से में अपनी तोड़ी पर हथेली जमाए बैठा था। ज़ैनब समझ गई थी कि वो जब भी गुस्से में होता तो ऐसे ही करता था। उसकी बचपन से यही आदत थी। वो ज़ैनब के घर में से हिस्सा मांगने पर गुस्सा था। ज़ैनब को रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। वो तो बस अपने बच्चों के लिए मासूम बेरौनक चेहरे देख कर चली आई थी। अपने भाई को नाराज करके सारी जिंदगी के लिए ये रिश्ता गिनवाना नहीं चाहती थी। उसकी इस पूरी दुनिया में 2 ही भाई थे, लिहाजा चुप करके वापस के लिए हो ली। वो अपनी जान से भी प्यारे भाई को नाराज ना करना चाहती थी। अपने भाई का दिल दुखाना इसका हरगिज मकसद ना था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने गलत मुतालबा किया। आइंदा मैं इस किस्म का कोई मुतालबा ना करूँगी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि मेरा इस मकान पर कोई हक नहीं था, क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठाकर मेरे सारे हकूक पूरी कर दिए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने पलटकर भाई की शक्ल देखते हुए कांपती आवाज़ में अपना पैगाम इस तक पहुंचाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। हाँ, भाई का दिल मोम करने के लिए एक और ड्रामा। ये औरत बड़ी ही ड्रामा बाज है। उसे अपने पीछे हाजरा की आवाज़ साफ सुनाई दी गई। आज 29वां रोज़ा था। लोग पुरुमीद थे कि आज शब ईद का चांद दिखाई दे जाएगा। वो अपने पुराने दुपट्टों में से ढूंढकर एक दुपट्टा निकाल लाई और अपनी छोटी बेटी का जोड़ा सिलाई करने में लग गई। बेटी अपना नया जोड़ा सिलाई देखते देखकर खुशी से सैन में छलांगे लगाती फिर रही थी।
अम्मा कब सिलेगा मेरा जोड़ा? उसने कोई 7वीं बार ज़ैनब से पूछा तो ज़ेरा मुस्कुरा दी। बस थोड़ी देर और दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। बाई का नौकर मौजूद था जो चावलों का डब्बा उसे पकड़ा गया। वो खुश थी कि उसके भाई ने उसको याद किया। इस बात पर वो मुतमईन हो गई कि चलो उसका भाई उससे नाराज ना था। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल गए थे, लिहाजा छोटी बेटी ने चावल देखती चावल खाने की जिद लगा ली। उसने प्लेट में थोड़े से चावल निकाल कर उसे दे दिए और बाकी बड़े दोनों बच्चों के लिए रख दिए और वो खुद दोबारा से जोड़ा सिलाई करने में लग गई। उसकी छोटी रानी ने कुछ चावल खाए और कुछ नीचे गिरा दिए। वो नीचे गिरे चावल समेटने को उठी तो अपनी बेटी की हालत देखकर कांप गई। शायद उसके गले में कुछ फंस गया था। ज़ैनब को कुछ समझ नहीं आई। उसके हाथ पांव मुड़ते जा रहे थे और उसके मुंह से जाग निकल रही थी। वो फौरन अपनी बच्ची को लेकर बाहर की जानिब भागी। मोहल्ले वालों ने बच्ची की हालत देखते हुए अस्पताल पहुंचने में उसकी मदद की। आपकी बच्ची ने कोई जहरीली चीज खा ली है, फौरी तौर पर इसका मुआयदा वाश करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। उसने तो बस वो चावल खाए थे जो उसके भाई ने उसे भेजे थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? शायद उसने चावलों से पहले कुछ मुंह में डाल लिया हो। ज़ैनब ने सोचा, आप ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आएं ताकि हम बच्ची का इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने उसे पर्ची थमाई तो वो फौरन बाहर की जानिब भागी। उसके पास कुछ पैसे मौजूद थे जबकि कुछ पैसे मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ा दिए थे। वो दवाइयाँ और इंजेक्शन डॉक्टर को पकड़ा कर दोबारा अस्पताल से बाहर निकल आई। उसका रुख भाई की तरफ से था। वो परेशानी की आलम में अपने भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाना चाहती थी। भाई का घर अस्पताल से कुछ फासले पर ही था, लिहाजा वो तेज तेज कदम उठाती भाई के घर पहुंच गई। रोती बलकती ज़ैनब को देखकर हाजरा ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। क्या बात है, अब क्या नया ड्रामा लेकर आई हो? वो मेरी बच्ची अस्पताल में है, उसने कोई जहरीली चीज खा ली है। भाई कहाँ है? उसको बुलवा दो, मुझे उसे अपने साथ अस्पताल लेकर जाना है। मेरी बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम्हारा भाई तो मुल्क से बाहर गया हुआ है और दुआ करो उसका काम बन जाए तो हम सब भी उसके पीछे ही चले जाएंगे। हाजरा ने अपनी ही सुनाई थी तो वहीं दहलीज पर सर पकड़कर बैठ गई। अब किसकी मदद के लिए पुकारेगी? उसकी तो दोनों भाई ही बैरूनी मुल्क चले गए और अच्छा है अपनी बच्ची को मर लेने दे। तेरे पास ही मौका है इससे जान छुड़वाने का। तुम्हारे खानदान से एक कम होगा तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। तुम्हारा भाई सारी जिंदगी तुम्हारे यतीमों को नहीं पाल सकता। हमारे अपने भी बच्चे हैं और हो सकता है तुमने खुद ही इसको जहर दिया और जान छुड़वाने के लिए अब रोती क्यों हो? थोड़ा हौसला करो और मैं तो कहती हूँ बाकी दोनों को भी जहर देकर मार डालो। हाजरा की बात पर आज उसका जबत जवाब दे गया। उसका दिल चाह कि इस औरत का मुंह नोच ले जो इसकी बच्ची की मौत की जिम्मेदार थी। वो समझ गई थी कि चावलों में जहर हाजरा ने ही डालकर भिजवाया था, क्योंकि उसका भाई बैरूनी मुल्क सुधार चुका था। वो खुद भी बाहर जाने की तैयारियों में थी। जाते हुए शायद वो इस किस्से को यही ख़त्म करके जाना चाहती थी ताकि भाई वहाँ भी अपनी बहन और इसके यतीम बच्चों की फिक्र भी ना लगा रहे। वो भी हाजरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लिहाजा फौरन उठी और दौड़ती हुई वापस अस्पताल की जानिब भागी। जिस कमरे में उसकी बच्ची को इलाज के गर्ज से ले जाया गया था वो उसके दरवाजे के सामने ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गई और अपने रब के हजूर हाथ उठाकर दुआएं मांगने लगी। रोते रोते और दुआएं मांगती उसकी हिचकियां बंद हो गईं। इस लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला तो बाहर निकलते डॉक्टर को देखकर वो खड़ी हुई और आस भरी नज़रों से डॉक्टर की जानिब देखने लगी। वो जहरीली चीज़ जो बच्ची ने खाई निहायत खतरनाक थी। जहर फौरन ही उसके सारे जिस्म में सरियत कर गया था। हम कोशिश के बावजूद भी इसको बचा ना पाए। वो एक चीख मार कर गिरी और बेहोश हो गई थी। उसे होश आया तो उसे अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। वो तो अपने बड़े 2 बच्चों को स्कूल से लाना भी भूल गई थी। न जाने वो कब स्कूल से आए होंगे और कहाँ बेटे माँ का इंतज़ार कर रहे होंगे। वो ईद वाले दिन अपनी बच्ची का नया जोड़ा अपने सीने से लगाए उसकी मैयत के सामने ज़मीन पर बैठी थी। जोड़ा तो वो मुकम्मल कर चुकी थी मगर उसने अपनी बच्ची से झूठ बोला था कि अभी कुछ सिलाई बाकी है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे सब्र नहीं होगा और वो इसी वक्त जोड़ा पहन कर बैठ जाएगी, जबकि वो चाहती थी कि वो ईद पर उसको सुबह सवेरे नहला धुलाकर नया जोड़ा पहनाकर बाहर भेजे। अगर उसे मालूम होता कि उसकी बच्ची को ईद वाले रोज़ नया जोड़ा पहना नसीब भी ना होगा तो वो उसे इसी वक्त पहना देती। कम से कम उसकी मौत तो उस जोड़े में हो जाती।
پر وہ وہی پٹے ہوئے کپڑے پہنے اپنے رب سے جا ملی تھی۔ کفن دفن کا سارا انتظام محلے والے کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کی نظر دہلیز پر جمی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کا بھائی نہ صحیح مگر اس کی بابی اور اس کے بچے تو ضرور اس کی بیٹی کی جنازے میں شریک ہوں گے۔ حاجرہ اور منظور خوش گپیوں میں مصروف ایئرپورٹ کی جانب گامزن تھے۔ حاجرہ نے منظور کو اس کی یتیم بھانجی کی بیماری کے متعلق کوئی خبر نہ دی تھی، اور وہ ایسا کیوں کرتی؟ وہ تو اس سب سے پہلے ہی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس نے منظور کے پہلے سے بیرونی ملک جانے کے بارے میں بھی زینب سے جھوٹ بولا تھا۔ بیرونی ملک تو ان سب لوگوں نے اکٹھے ہی عید کے اگلے روز جانا تھا، اور حاجرہ کا ارادہ کبھی واپس پلٹ کر نہ آنے کا تھا۔ اس کے سارے انتظامات پہلے ہی ہو چکے تھے۔ نہ جانے زینب کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر حاجرہ کی روح کو اتنا سکون کیوں ملتا تھا۔ اسی طمانینت کو پانے کی خاطر اس نے چاولوں میں زہر ملا کر زینب کی طرف بھیج دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سبھی زہر کھا کر مر جائیں تو سب لوگوں کو یہی لگے گا کہ غریب ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے کر خود بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ جانتی تھی کہ اگر بچ بھی گئی تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زینب جب روتی بلکتی اس کی دہلیز پر پہنچی تو حاجرہ کی روح تک میں سکون پڑ گیا تھا، مگر وہ اس بات پر ٹھٹک گئی کہ اس کی صرف ایک بچی کی حالت تشویشناک تھی۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، اس نے کندھے اچکائے اور بیرونی ملک جانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ زینب کا اس دنیا میں بھلے کوئی نہیں تھا، لیکن خدا تو اس کا بھی تھا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے گاڑی منظور کے قابو میں نہ رہی اور سامنے سے آتے بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثہ بے انتہا خوفناک تھا۔ گاڑی دور تک ٹرک کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ ٹرک والا تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس سنسان بیابان میں کوئی آدم موجود نہ تھا۔ حاجرہ کے سوا سبھی موقع پر دم توڑ گئے۔ وہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو سسکتا مرتا دیکھتی رہی، مگر وہ گاڑی میں پھنسی ہوئی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ اسے زینب کے دکھ درد کا چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا۔ جائے حادثے پر سب سے پہلے پہنچنے والے آوارہ کتے تھے، جو خون کی بو سونگھ کر وہاں پہنچے۔ وہ لاشوں کی طرف بڑھتے تو حاجرہ نے انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حاجرہ پر ہی حملہ کر دیا اور اس کو بری طرح بمبور ڈالا۔ پاس سے گزرتی گاڑی نے حادثہ دیکھا تو رک کر کتوں کو دور بھگایا اور ایمبولینس کو فون ملا دیا۔ معذور حاجرہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے پاگل ہو چکی تھی۔ وہ کتوں کی طرح کھانا کھاتی اور پانی پیتی اور منہ سے کتوں کی بھونکنے کی آواز نکالتی۔ جو بھی اس کے پاس جاتا اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ ڈاکٹر نے انسانوں کو اس کے پاس جانا منع کر دیا، کیونکہ وہ جس کو کاٹے گی وہ بھی اس کی طرف پاگل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے زنجیر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ایک الگ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اسے پیالے میں کھانا اور پانی رکھ دیا جاتا اور وہ کتوں کی مانند کھانا کھاتی اور پانی پیتی۔ اسے کچھ یاد نہ تھا اس کا یہ انجام کیوں کر ہوا اور وہ اپنی زندگی میں یتیموں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر چکی تھی، مگر دیکھنے والے سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے۔ حاجرہ کا قصہ زبان زد عام تھا، عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے، جبکہ وہ لوگ جن کے دلوں پر آنکھوں پر اور کانوں پر خدا نے مہر لگا دی تھی وہ ابھی بھی اس قصے سے کچھ نہ سیکھ پائے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔